all the office bearers of both Rotary clubs, Mahanagar as well as Kakaria, and all the respected members of Rotary, Rotaract, Innerwheel, etc. And dear friends, it's a great pleasure meeting you virtually, not actually. Actually would have been better, but it's a great thing that today we are meeting here virtually on this Gita Jayanti day. आज गीता जयंती के दिन पर हम लोग यह भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं. That's a great thing. और that is why I want to congratulate both the Rotary clubs for organizing this wonderful program on this exceptionally holy day, गीता जयंती. वो भी आज एकादशी है, वैकुंठी एकादशी वो भी, और उस दिन ये गीता जयंती के अवसर पर ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन. आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, जब तक कि हम टॉपिक ये है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द भगवत गीता, तो यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट अमेरिका में कई कंपनियों ने अब भगवत गीता के संदेश को अपनाना शुरू कर दिया है. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द मैसेज ऑफ भगवत गीता, प्रैक्टिकली implementing the suggestions that are given in Bhagavad Gita. There was a news item in Newsweek magazine which is published from New York. उसमें उन्होंने कहा, corporate America is embracing Indian philosophy in a big way. Phrases from the ancient Hindu texts such as the Bhagavad Gita keep on coming up in management circles. और बाद में बोलते हैं the trendy text today is the more introspection Gita, and इसका नाम उन्होंने दिया है कर्मा कैपिटलिज्म. This new type of management that is coming with the help of Bhagavad Gita and other texts from Indian ethos, they have given the name karma capitalism. So slowly this way we find the fourth wave of management is slowly creeping in. The first wave of management, as you know, was the British style of management, when work measurement, work study, method study were in vogue, and Taylor's method of work measurement was in vogue. The second method of management, the second wave of management, was the American style of management, when Peter Drucker became the guru of all. The third wave of management was the Japanese style of management, when TQM, total quality management, and zero defect came in vogue. And now slowly the fourth wave of management is sweeping not only in India but in other countries including America. And what is that wave? That is the wave holistic, that is the wave of holistic management based on Indian ethos, which also covers the message of Bhagavad Gita. So slowly Bhagavad Gita, Shri Krishna's message of Bhagavad Gita, which was delivered 5,000 years back, is much more relevant today. That is very surprising. What a visionary Lord Krishna was. So now this fourth wave is coming. What is the reason? There are many reasons. Number one, globalization has come, at least on economic front. Liberalization has come. There is a very tough competition that is going on. And that is why you need to be very, very high in productivity. And how productivity will come? Through efficiency in action. And that is why Bhagavad Gita says, Buddhi yukto jahatiha ubhe sukrita dushkite tasmat yogaya yujjasva yoga karma sukoshalam. What is yoga? Dexterity in action, efficiency in action. Yoga karma sukoshalam. That is the need of the world today. Unless until we have yoga karma sukoshalam, we will not be able to compete in the corporate world with the other countries, with the other companies, and you will be wiped out because of the economic recession. So if you want to survive in this economic recession period, you have to take up the message of Bhagavad Gita. What is that? Yoga karmashu kaushalam. Dexterity in action, efficiency in action is the real need today. Another thing that has come up is a new type of leadership is emerging. The leadership that is very, very popular now is called servant leadership. Now that was started by Robert Greenleaf. Though he started in 1976, he wrote a book called Servant Leadership in 1976,
Now only it is becoming very, very popular. And this servant leadership, what is that? Leading by example. Leading by example, leading by not by precept, but by example. That is becoming the servant of all, in the sense effacing your ego. Unless until you face your ego, and unless and until you show by your example, the other employees, they will not be able to be, they will not be inspired. So you have to inspire them not by rod, not by hook or crook, but by your example. This is exactly what is told in Bhagavad Gita. What is told? Yadyat acharati shrestah tattat teve taro janah स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते. जो अपना आचरण जिसका श्रेष्ठ है, उस आचरण के द्वारा वो दूसरों को प्रेरित करता है. तत्त देवे तरोजना, दूसरे लोगों को वह प्रेरित करता है. ही इंस्पायर्स अदर्स. हाउ? नॉट बाय प्रीचिंग, नॉट बाय लेक्चर, बाय हिज ओन एग्जांपल. दिस इज द, वो अपने प्रमाण उसका क्या है? खुद का बिहेवियर. By behavior, by his own behavior, he is inspiring other. So that is a true leader. जिसको स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे, सच्चा लीडर कौन हो सकता है? सिरदार, वही सरदार. सरदार कौन हो सकता है? जो अपना सिर दे सकता है. सिर देने का मतलब होता है जो अपने ईगो को छोड़ सकता है. One who can efface his ego, one who can sacrifice his ego, he alone can be a true leader. और आज हम सर्व लीडरशिप की बात कर रहे हैं. आज से 5000 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही बात कही, यत यत आचर्य श्रेष्ठ. और उन्होंने भी खुद ने अपने एग्जाम्पल के द्वारा किया. आप सोच सकते हैं, ही वॉज ए किंग मेकर, नॉट ओनली ए किंग, ही वॉज ए किंग मेकर. और फिर भी क्या किया? अर्जुन के सारथी बने. जस्ट सी, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा बताया, सेवा के द्वारा, अपने उदाहरण के द्वारा उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, जिस नेतृत्व के कारण महाभारत के भीषण युद्ध में पांडवों की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, न्याय हुआ, न्याय की जीत हुई. This is what has been demonstrated by Sri Krishna by his own life. Another thing that has come is the fifth M has become very important in the modern management phenomena. Management was management of 4 M's. अभी तक 4 M की बात होती थी. What is that? Management of materials, that is materials management. Management of money, that is financial management. Management of man, that is personal management, what is called now HRD, human resource development. And management of machines, that is production planning and control. But now the fifth management is becoming very important. What is that? Management of mind. Management of mind is becoming very important. Unless until you can manage your mind. Supposing there is a big manager, he knows, he's a gold medalist, he knows everything. Only one thing is that when he gets angry, he throws paperweight at his subordinates. Nobody wants to work under him. Why? Because he cannot control his anger. So management of mind is becoming very important. And management of mind, you get the best knowledge of how to manage the mind from Bhagavad Gita. So that is why Bhagavad Gita is now becoming an in-subject. And another thing, SQ is becoming important. So Dana Zohar says, if you really want long-term happiness, long-term success, long-term peace, then you need to have not only IQ and EQ, but also SQ. So she has written a book. She is a professor in Oxford University. The name of the book is SQ, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence, where she says neurologically, physiologically, biologically, psychologically, from every point of view, there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you why to play the game of life. What is the purpose of life? What is the meaning of life? What do you want to achieve before I die? That is SQ. And this spiritual intelligence, but how to develop this spiritual intelligence? This is $1 million question. And what is, first of all, SQ? There's a beautiful example that is given by Dana Zohar in that book. I am telling that example in a little different way. By the side of the management, by the side of the Mexican coast, there was a management consultant. And that there was a little distance, there was a boat, एक नाव थी,
एक नाव में मछली पकड़ने वाला सो रहा था, दोपहर का समय था, तो ये मैनेजमेंट कंसल्ट करे, ए क्या कर रहा है, सो रहा है, सोया क्यों है, मछली क्यों नहीं मारता? तो उसने सोते सोते कहा, सर बात ऐसी है कि सुबह सुबह एक बहुत बड़ी मछली मिल गई, उसको मैंने बेचा तो बहुत पैसा आ गया, तो मेरा आज का कोटा खत्म हो गया, तो मैं अब आराम फरमा रहा हूं। है, इसमें भी कोई कोटा सिस्टम होता है रे? अरे और जो मछली पकड़ेगा तो और पैसा मिलेगा। अरे पर और पैसे का करूंगा क्या? क्यों? डिपॉजिट करना। डिपॉजिट, डिपॉजिट शब्द ही उसने नहीं सुना था। बोले हाँ, बैंक में अकाउंट खोल लेना, डिपॉजिट करना, फिर डिपॉजिट करते जाना, फिर ज्यादा पैसा हो जाएगा ना तो दूसरी बोट खरीद लेना, फिर तो और तुमको मछली मिलेगी तो और पैसा मिलेगा। अरे पर उस पैसे का क्या करूंगा? अरे फिर से उसको डिपॉजिट करना, फिर तीसरी बोट खरीदना। ऐसा करके करके यू विल बिकम सीईओ ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। फिर उसके बाद में यू मूव योर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम मैक्सिको टू न्यूयॉर्क, ओपन ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद तो तुमको सारे विश्व में घूमना पड़ेगा। फिर तो जब इतना घूमोगे तो हार्ट प्रॉब्लम होगा, ब्लड प्रेशर होगा, और जब डॉक्टर बोलेंगे थर्ड बाईपास सर्जरी हो गई, नो मोर, तब तू क्या करना? रिटायर, रिटायर कर लेना। फिर क्या करना? कंपनी को बेच देना, बेच के मेरे पास आना आई एम एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम हार्वर्ड, I will tell you where to invest this money, and when you invest like that, every month you will get fixed income. हर महीने तुमको फिक्स्ड इनकम आएगी, and you will be able to sleep without any tranquilizer. बहुत अच्छी तरह तुम सो सकोगे। अरे मैं तो सोया था अच्छी तरह, तुम नहीं जगाया। तो डानाजुआर कहती है, दिस पर्टिकुलर फिशरमैन हैज गॉट लो IQ, he doesn't know how to make money, but this management consultant, he knows how to make money, has got more IQ, but this fisherman has got high SQ, he knows the purpose of life is to have happiness and peace in life, but this management consultant has got low SQ, doesn't know what is the purpose of life. This is SQ, to know the purpose of life, why we are here, हमको चाहिए क्या, क्या चाहते हैं हम लोग अपने जीवन में? क्या हम सुख शांति चाहते हैं, दैनिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति चाहते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय भगवत गीता। भगवत गीता कहती है कि हमको क्या चाहिए? दैनिक जीवन में सुख शांति चाहिए और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति चाहिए, तो हमको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस करना पड़ेगा। बट हाउ दिस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कम? ये आएगा कहां से? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसका रिप्लाई बहुत अच्छी तरह स्वामी विवेकानंद ने दिया है, जहां पर वो कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. तो 4 उपाय बताए स्वामी विवेकानंद ने इस SQ को प्राप्त करने के, इस दिव्यता को प्राप्त करने के, उस अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति को प्राप्त करने के, और दैनिक जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए 4 उपाय बताए। कौन कौन से 4? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब की चर्चा बहुत बढ़िया से भगवान श्री कृष्ण ने ऑलरेडी 5000 साल पहले भगवत गीता में कर दी, जिसमें कि हम देखते हैं 3रे अध्याय में कर्मयोग की चर्चा है, 4थे अध्याय में ज्ञान योग की चर्चा है, 6ठे अध्याय में राजयोग या ध्यान योग की चर्चा है, 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा है। वैसे तो सारे 18 अध्याय में ये सब कुछ 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 चर्चा है ही है, पर ये विशेष करके उनका नाम दिया गया है। इन योगों का हम पालन करेंगे जो भगवत गीता में दिया है, तो क्या होगा? दैनंदिन जीवन में सुख शांति मिलेगी, और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का जो स्रोत है वो भी हमको मिलेगा। एंड बाय डेवलपमेंट ऑफ SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा हमको यह मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवत गीता is now becoming an in subject in the field of management. Why? Because it increases productivity, because of yoga karma sukhaushalam. Second, it takes care of SQ through harmony of 4 yogas. Third, leadership, जो जिस सर्वेंट लीडरशिप की बात हम करते हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें भगवत गीता मिलता है। लास्ट, my time is ending, so last point, which is very important, stress management is becoming very important. According to Chicago based research corporation, 40%
of the companies in America are now having regular courses on stress management. Stress management is a big problem. टेंशन, आधुनिक मानव टेंशन में है, और अभी तो कोरोना का टेंशन और ऐड हो गया। कोरोना वायरस is not only an epidemic but it has become a pandemic. तो पैंडेमिक हो गया, सारे विश्व में ये टेंशन आ गया है। तो हाउ टू फेस इट, उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में मिलता है। तो जब हमने कहा कि भगवत गीता में युद्ध के लिए अर्जुन आया और दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, और श्री कृष्ण भगवान को बोलता है, अर्जुन जरा बीच में तो ले जाओ, मैं देखूं वो दुर्बुद्धि दुर्योधन किसके के साथ और कौन कौन आया है मेरे साथ युद्ध करने। और वहां जब गया तो उसको दुर्योधन नहीं दिखा, उसको शत्रु नहीं दिखे, उसको अपने संबंधी दिखे, मोह आ गया, आसक्ति आ गई, और बोलता है भगवान अर्जुन क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण को, मेरा गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, और मैं कांप रहा हूं, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। ऐसा करके रथ के पीछे बैठ जाता है, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप सोच सकते हैं, जनरल ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन, इज द जनरल कहता है सेना का, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं, और बाद में अर्जुन युद्ध करता है और बाद में जीत भी जाता है। क्या हुआ, ये भगवत गीता का यह रसायन है, दैट इज द मैजिक फॉर्मूला। दैट भगवान ने क्या कहा, जब इस प्रकार से अर्जुन जब बैठ गया तो भगवान ने क्या किया मालूम है, भगवान ने कहा कुतस्वा कशमलमिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये अर्जुन, तेरे मन में ऐसी दुर्बुद्धि कहां से आएगी, जो कि ऐसी कहां से आ गई, ऐसी जो अपकीर्ति को लाने वाली दुर्बुद्धि ऐसे विषम समय में, विषमे समुपस्थितम, क्यों ऐसे तुम्हारी दुर्बुद्धि आ गई। और फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नहीं त्वत्तहि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। गेट अप, उठ, खड़े हो जा। क्लेब्यम, नपुंसक मत बन, कापुरुष मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके फेंक दे उसको और खड़े हो जा युद्ध के लिए। ऐसा आह्वान किया। क्या पावर दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वो जान गए अर्जुन को अभी न्यूरोसिस हो गया, न्यूरोसिस नाम का रोग हो गया होता है ना, उसको ये साइकोलॉजिस्ट लोग जानते हैं। हमारे से इनको पूछिए हमारे साइकोलॉजिस्ट को, वो क्या बोलते हैं कि अनुराग मेहता जी को पूछिए कि जब इस प्रकार के न्यूरोसिस होता है ना, उसको शॉक थेरेपी देना पड़ता है। तो आजकल तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उस समय इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था, तो भगवान ने शॉक थेरेपी दिया। ऐसा शॉक दिया, किसी भी आदमी को बोले तू कापुरुष है तो तिल मिला जाएगा। सचमुच में यही हुआ, अर्जुन तिल मिला गया, और भगवान चाहते थे उसको तिल मिलाने के लिए, तिल मिला करके उसको तिल मिला गया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पहले उसको तिल मिलाया, अभी रोता रहा था, एकदम जग गया जब जोर से इस प्रकार गाली दी। हाँ, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। उठ, खड़े हो जा, ये तुच्छ दुर्बलता को दूर कर दे, कायर मत बन, कापुरुष मत बन। ये मैसेज है स्वामी भगवान श्री कृष्ण का। आज हम लोग भी कायर हो गए, हाय क्या होगा, कोरोना आ गया, अरे पैंडेमिक हो गया, हम क्या करें, अरे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, हमारी सैलरी 50% हो गई, हमारे के खड़ो, व्हाट आउट, गेट अप। अब तुच्छ निर्बलता को दूर कर दे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है, हम वैक्सीनेशन लाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम सैनिटाइजिंग करेंगे, we will take all possible care and we will fight with this राक्षस। ये राक्षस बड़ा आ गया है कोरोना नाम का, उसके साथ हम बहादुरी पर युद्ध करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का मैसेज है गीता का। टुडे श्री कृष्ण इज वेरी वेरी रेलिवेंट। आज जब गीता जयंती का अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं कि उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हमको जगाया है, उठो जागो और ये सामने है जो युद्ध करो। ये जो फोर्सेस हैं, द फोर्सेस विच आर ट्राइंग टू ओवर पावर्स, ऐसे से जो इविल फोर्सेस हैं, चाहे कोरोना वायरस का इविल फोर्स हो, चाहे बाद में समाज में भी जो दुर्जन व्यक्ति उनका फोर्सेस हो, या हमारे भीतर में जो राक्षस बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब के विरुद्ध में हमको लड़ाई करनी पड़ेगी, बहादुर बनना पड़ेगा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता दूर करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, खड़े होकर के युद्ध करना पड़ेगा। लास्ट, जब बाद में इतना सब होने के बाद कुछ भी नहीं होता है, ऐसी कभी कभी परिस्थिति आती है
कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश याद रखें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये अर्जुन, ये ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठे हैं और क्या करते हैं, जैसे मशीन ऑपरेटर चलाता है ऐसे मशीन चलाते हैं, इसी प्रकार से सबको कर्म में प्रवृत्त करते हैं। उनकी शरण में जा, उनके शरण में जाने से, उस ईश्वर के शरण में जाने से तुझे परम शांति प्राप्त होगी। और फिर आखिर में कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुमको कोई भी समस्या है मेरे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चूत। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सब कुछ, तेरा सहारा सब छोड़ करके शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा, चिंता मत कर, मैं तुझे सभी पापों से तेरी निवृत्ति करा दूंगा, सभी दुखों से तेरी निवृत्ति करा दूंगा। तो हमारे पास दो उपाय हैं, एक पुरुषार्थ का उपाय है जहां पर कि हम लड़ाई कर लें राक्षस के साथ, चाहे वो कोरोना रूपी राक्षस हो, चाहे कुछ भी हो। और यदि हम कभी ऐसी एक स्थिति आती है जब हम समझते हैं कि हम सचमुच में कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है, हम भगवान के शरण में जाए। भगवान ने हमको यह दिया है, आश्वासन दिया है, प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस, मैं तुझके तेरी रक्षा करूंगा, मैं हूं तेरे साथ, सब चिंता मुक्त हो जा। ऐसा सुंदर हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिद्धांत हमको भगवत गीता में मिलता है। और भी बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन्स मिलते हैं, पर मैंने बहुत ही कम ऐसे संक्षेप में मैंने कुछ मैनेजमेंट लेसन्स बताए जो भगवत गीता में से हमको मिलते हैं। भगवत गीता का अध्ययन हमारे दैनिक जीवन में सुख शांति लाएगा, सफलता लाएगा, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की ओर भी हमको अग्रसर कराएगा। पुनः आप सभी दोनों रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।